काफी टाइम हाँ। बाद। हाँ, काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 ईयर। और Yep. कैसे सब चल रहा है? Great. Like we had the NASA thing going on. We are doing it this year again with students, and this time around we have actually also get got into VCs. So थोड़ा VC से introduction हुआ है अभी recent times में. So we have came in touch with WTF funds by Nikhil Kamarat. So we are also shortlisted there, top 8%. So we are into that. Right now uh, we have a term sheet plan of 1.2 CR in funding. So we are looking forward for that. It will be 1.2 CR at 12%. So a 10 CR valuation that round will be. And abhi term sheet ready hai. You can say by August the funding MOA will be signed and everything will be done. सही है, So कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। हाँ, कंपनी तो लास्ट ईयर ही इनकॉर्पोरेट हो गया था. अच्छा। We have ओके। DIPPT everything. तो अभी किसके नाम पे है कंपनी? अभी मेरे दादी और मेरे मदर के नाम पे. ओके, ठीक है। एंड हाउ ओल्ड आर यू नाउ? जस्ट टर्न्ड 18 16 तारीख को, 16 जून. अरे वाह, awesome. So hello and welcome everybody to the Skill Titans podcast. Today we have a very special guest. He is the winner of Skill Titans season 1, Tanishq Upmanyu. And Tanishq, if you could tell everybody a bit about your background, where did you come from, and what are you doing today with Kaiser Tech? We all would love to hear it. So hello everyone, myself Tanish Upmanyu. I am a teen entrepreneur, specifically a school student when I applied in the OLL Skill Titans. Had played a very crucial role in my overall entrepreneurial journey, as it has gave me a platform to escalate my startup to certain heights. It's been a very good. Also, in the event itself, it was a kind of a new experience for me to form friends like the top finalists there. Right now, we are in touch with them. We do collaborate. We do everything with them. Like we have a weekly huddles. We Yeah. talk to each other and all. There is a whole community formed around it. And with the Kaisel Tech, we have vision to create something that impacts people, specifically in terms of what we are working right now is on healthcare. So we are moving forward to build something to completely change the domain of healthcare by providing accessible medical care emergency services to your doorstep. So that's what we are working on, and we have also been working with the defense sector. We have been working with the medical sector right now. We have in talks with some rescue teams and Navy also on a project like that. By so far, our journey right now, the Kaizen Industries values around 3 CR, and we are looking forward for a much more bigger goal, because this is what I think is just 1% of what we have achieved. So, yeah. Awesome, awesome. तो इतना सब सक्सेस के बाद आवर ऑडियंस वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप एकदम स्टार्ट से पहले आइडिया कहाँ से आया, और हाउ डिड यू रियली स्टार्ट द एंटायर जर्नी, मतलब एकदम बेसिक ग्राउंड जीरो से स्टेप 1 क्या था और कहाँ से आइडिया है? Yeah. So when I was 13 years of age, I was just a normal kid. Okay, जैसे हम सब होते हैं. At that time, there was function going on in my house. So I'm telling you the journey behind, like how I started the innovation part. मैं कैसे innovation के अंदर, because before entrepreneur, I was an innovator. I make stuff, I do stuff, I participate in a lot of competitions. So how did I enter into that? Is that कि एक नॉर्मल सा इवेंट फंक्शन चल रहा था हमारे घर में, एंड इट वाज एक्चुअली आवर न्यू हाउस इनॉग्रेशन. सो जो मेरी नानी थी, उन्होंने, मैं एक्चुअली भी नानी घर में ही हूँ, उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के दरवाजे को पेंट करो. सो आई थिंक ओके, आई टुक आउट द पेंट, आई पेंट इट. मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया. सो देन ही रिकमेंडेड कि गो गेट सम पेट्रोल फ्रॉम द व्हीकल एंड रब इट देयर, तो वो छूट जाएगा. एंड देन आई गेट टू देयर. अब यहाँ से ही वो पॉइंट आता है जो डिफरेंशिएट करता है आपकी पूरी लाइफ को. At that point of time, normal kid will go get the petrol, rub it, and okay, okay, done. What it is that जैसे ही मैं गया, मैं एक्चुअली एक प्लास्टिक ग्लास लेके गया वहां पे, and I put the plastic glass there.
and it melted in my hands. I was like, why? The why is the core reason the everything changed my life. So मैंने पूछा क्यों हुआ ये. At that point, that was my first innovation, the plastic pyrolysis plant, जिसको national level पे भी award मिला मिला था. Ingenuous first national award there in 2000 when I was 13 years of age. I get into this stuff, then I go, and then I worked with ISRO at that time when I was 14 years of age. I got a lot of experience, lot of mentors. So crucial role because when you go to a certain areas जो आपको understandable नहीं होते हैं, जो आपके लिए नए होते हैं, वो लोग जो उससे familiar होते हैं वो सबसे बड़े हेल्प करते हैं उस एरियाज को एक्सप्लोर करने में. क्योंकि आप अंधेरे में बस ऐसे आंख बंद करके नहीं चल सकते. यू नीड समवन टू स्ट्रक योर हैंड और सही रूट दिखाए, बिकॉज इस एरिया में गलत रूट भी है एंड वी नीड टू मार्क आउट दोस. So then when I was when I was in 10th class, so I was doing this all innovation. At that time, I had 150 plus national certificates, and I had participated in a lot of competition. मैं बोर हो गया था participate हो करके, and I was like, I need to do something different. And then I realized कि जो मैं कर रहा हूँ, what's my core perspective of doing those things. And then I realized कि मैं तो सिर्फ competition में जाके participate कर रहा हूँ. I'm not building anything. We need to, because see, thinking of an idea is good until it is implemented is nothing. So implementation is the core point. So then I realized that I need to do something, and in 10th class I started my venture. बहुत बहुत लोगों से गालियां पड़ी हैं, पेरेंट्स तक से भी काफी बैकस्लैश था, बिकॉज सी इन आवर कम्युनिटी, आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ. सो हमारी कम्युनिटी छोटी, हमारे पूरे खानदान से आज तक से कोई भी एंटरप्रेन्योर इस जर्नी में नहीं गया है. इवन मैं जो जिस जर्नी में जा रहा था, वेरी हाई रिस्की स्टेज, जो अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स. सो दे रियली डिडंट वांट टू गेट इनटू दिस. वो कह रहे थे काफी रिस्की है, क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ो, है ना, जेई दो, आईआईटी में जाओ. आई वाज लाइक नहीं, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मेरी डेस्टिनी दूसरी है. एंड देन आई स्टार्टेड द कंपनी काइजल विथ माय फोर ऑफ माय फ्रेंड्स. एंड 10th क्लास में हमें कुछ नहीं पता था. We know nothing about how company works. We don't know even incorporate कराना क्या होता है. हम उसको बोलते थे लीगली हमें स्टैंड होना, लीगली हमें स्टैंड होना, हमें खुद नहीं पता था. देन वी गेट इन टच विद द सीए. हम लोगों ने काफी चीजें सीखी. पहले तो हमें बहुत टाइम लगा सीखने में. जब हमने सीख लिया उन चीजों को कि हाउ अ कंपनी फंक्शंस, हाउ एवरीथिंग पहला वर्क्स. स्टेप था, यू वेंट टू अ सीए एंड यू हाँ, आस्क्ड देम कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे करें. सब या कुछ के पहले मतलब आइडिया उस टाइम सोचा था कि क्या करना है, या अभी तक नहीं, सोचा. आइडिया वाज देयर एक्चुअली. उस टाइम पे क्या था ना, मेरे पास 3-4 आइडियाज थे मेरे मन में, बिकॉज मैं कई सारे कॉम्पिटिशन में जा चुका था. हम्म. मैं लास्ट 2 इयर्स से रिसर्च पेपर्स लिख रहा था, तो मेरे पास काफी सारे आइडियाज हो गए थे जो अच्छे खासे थे और नेशनल अवार्डेड थे, तो आई कैन इम्प्लीमेंट दोस. सो मेरे मन में इनिशियली कंपनी को लेके मेरे मन में ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी चीजों पे मैं काम करूं, जो हम्म. आइडियाज पे मैं काम करूं, उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. दैट्स द माई मेजर गोल. वो मेरा मेरा मेजर गोल एक कंपनी रिलेटेड जैसे नॉर्मली होता है कि एक आइडिया आया, लोग उसको इम्प्लीमेंट करने गए. आई हैव हम्म. मल्टीपल आइडियाज, और मेरा प्लान ही था इस कंपनी के रिगार्डिंग कि मैं इसको इम्प्लीमेंट ही करना है इनको. Got आइदर it. वे के क्या रेवेन्यू आया ना है वो बात की बात है, बट पहले हमें इम्प्लीमेंट करना है. तो वो मेरा थिंकिंग था, जो कि बहुत गलत था. बिकॉज फिर मुझे पता चला कि नहीं, हमें एक बार में एक चीज पे फोकस करना होगा, अदरवाइज वी आर गोना लॉस्ट एवरीथिंग. सो Correct. देन आई डिसाइडेड टू गो विद माई मेडिकल आइडिया. अब मेडिकल आइडिया कैसे है ना, मैं उसका स्टोरी बताता हूँ. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी. एंड आई थिंक आई हैव आल्सो टेल, लाइक शो पे मैंने बताया था. सो व्हेन आई वाज इन गैंगटॉक, बिकॉज मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हर 30 साल में हम इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं. सो व्हेन आई वाज इन गैंगटॉक सिक्किम, इट्स अ रिमोट एरिया, एंड वहाँ पे रोड्स लाइक बहुत पतले रोड्स हैं. जो यहाँ पे नॉर्मल सिटीज में सिंगल लेन होती है, वहाँ पे डबल लेन होती है. बहुत पतले रोड्स होते हैं, ठीक है. सो आई वाज देयर एंड विथ माय पेरेंट्स. एंड रात का टाइम था, एंड माय मदर जो है वो फेल फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. एंड एट दैट टाइम हमने एम्बुलेंस को कॉल करा. इट्स एन आर्मी एम्बुलेंस. उनको आधा घंटा लग गया वहां पहुंचने में, एंड देन अगेन जाने में. एंड हम वहां पहुंचे, उनका इलाज हुआ, शी इज सेफ नाउ. बट डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 10 मिनट और लेट होते ना, वी कुड हैव लॉस्ट हर. एट दैट टाइम मेरे मन में ये थिंकिंग आई कि माई मदर वॉज लकी टू गेट दैट 10 minutes.
बट सम पीपल इन इंडिया इन वर्ल्ड आर नॉट दैट लकी टू गेट द 10 मिनट्स। और वो 10 मिनट का फासला ही आज यहाँ पे जो भी लेकर गया है, बिकॉज यू सी मेरा विजन ये था कि मैं हेल्प करूँ लोगों को। बट कंपनी हेल्प करने से नहीं चलती। वी आर नॉट रनिंग अ नॉन प्रॉफिट, ऑफ कोर्स वी आर रनिंग अ कंपनी, वी आर रनिंग अ बिजनेस, वी नीड टू गेट रेवेन्यूज, वी नीड टू गेट प्रॉफिट्स। सो वो वाला जो पार्ट है ना, बिजनेस वाला पार्ट, दैट इज द हम्म, कम्प्लीटली न्यू डोमेन फॉर मी। इनोवेशन पार्ट इज समथिंग जो मैं करते आ रहा हूँ बचपन से। बिजनेस के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। देन आई गॉट टू सम मेंटर्स, मेंटर से मेरी काफी अच्छी कनेक्शंस हुई। जो कॉम्पिटिशन्स में जाता था, मेरा ट्रिक था ये था कि जो कंपटीशन में मैं जाता था उन कंपटीशन के जजेस से मैं कांटेक्ट रख लेता था। इवन द ओएलएल जजेस आई हैव द कांटेक्ट ऑफ देम टिल नाउ। ओ वाह। मैं अभी भी उनसे बात करता हूँ, उनसे अभी भी मेंटरशिप गाइडेंस लेता हूँ। एंड यही सबसे बड़ी ट्रिक है। जो भी कंपटीशन है, भले जीतो ना जीतो उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। सामने वाला जैसे लाइक ऑफ कोर्स आप भी आए थे, याद है अभी अगर आपको याद होगा नविश में करेक्ट। जमशेदपुर में हम मिले थे। and then why I got in touch with you, we talked about everything। and then फिर वहां से मुझे आपने जब लॉन्च करा, so we got in touch। and then I applied and then got selected and that's how everything works। अगर मैं आपसे मिला ही नहीं रहता, अगर मैं कोई कंपटीशन में आया नहीं रहता, तो आज ये पॉडकास्ट भी नहीं हो रहा होता, है हाँ। ना। सो द थिंग इज नेटवर्किंग। भले कुछ भी हो ना हो, नेटवर्किंग कर लो, ऑफ कोर्स मेंटर्स मिल जाएंगे वहां पे। सो हम्म। वो उनसे गेट इन टच हुआ, बिजनेस पर्सपेक्टिव जाना, और तो एक हियर आई एम। वापस से एक सेकंड, आपने पहले चार लोग ने अपने कंपनी चालू की, हम्म इनकॉर्पोरेट की, मतलब हम्म कि क्या किया था, हाउ डिड यू इनकॉर्पोरेट? चार लोगों ने को फाउंडर्स बने थे या क्या था एग्जैक्टली कि बस नहीं नहीं नहीं। नेम सो से किया था या लीगल हाँ, सो एंटिटी? को फाउंडर वाज ओनली मी। मैं ही था, बिकॉज लास्ट वर्ष ईयर से मैं ही काम कर रहा था उस पे। द अदर 3 मेंबर्स आर देयर टू हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कंटेंट राइटिंग, जो ओके, तो जो आपने टीम स्किल्स में मेंबर्स मैं। हायर किए थे उस टाइम, हाँ, यू कैन से दैट। एंड इनको पे जिन कर जिन रहे थे स्किल्स में या मैं लो था। इनको पे कर रहे थे या नहीं? हम्म। वर यू पेइंग देम और सो नहीं? मतलब हमने इनिशियली, मेरे पास काफी अमाउंट था उस टाइम पे, तो मैं उनको पे भी करता था। समटाइम्स दे वर्क इंडिपेंडेंटली, वो खुद से वर्क करना चाह रहे थे, बिकॉज दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ मी। तो मैं उनको वो सिखाता था जो मुझे आता था, और वो मुझे सिखाते थे जो उनको आता था। तो इट्स अ टाइप ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। सो इट्स बोथ मॉडल, पेमेंट भी इज देयर एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड ओके। मोस्ट ऑफ देम आर हाई स्कूलर्स। कोई 9th में था, कोई 10th में था, कोई 11th में था। सो उनको मनी से उतना अट्रैक्शन था नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर वेल सफिशिएंट, पेरेंट्स थे वहां पे, अच्छे खासे थे, एंड दे जस्ट वांट टू लर्न समथिंग न्यू, सो दैट्स व्हाई। सो स्टेप या वन वाज आप लोग ने मतलब लीगल कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, बस एक आइडिया बन गया था। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। एक्चुअली बिकॉज देयर इज, यहाँ मैं जहाँ पे हूँ बहुत गर्मी है ना, ये मैसेज आ गया मेरे को, आईफोन इज टू हॉट, नीड्स टू कूल डाउन। कहाँ पर है? अभी मैं हूँ धनबाद, झारखंड, अच्छा, ओ, नाइस। कोल माइंस। तो फर्स्ट टाइम सीइंग दैट मैसेज। भाई साहब सही है, इतना सही। गर्म तो नहीं हो वैसे। चले कोई नहीं। हाँ, फर्स्ट स्टेप वी आर देयर, सॉरी। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप वाज आप लोग ने सोचा कि एक कंपनी चालू करना है, लीगली हम्म इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट आप सीए के पास गए, उससे गाइडेंस हम्म
कि कैसे कंपनी चालू करते। फिर उसके हम्म बाद आप लोग ने मतलब क्या कोई अग्रीमेंट साइन किया चारों लोग ने, या बस ऐसे ही दोस्त दोस्त ने हाँ बोल दिए थे कि हाँ चलो कंपनी चालू। सो बेसिकली ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वेयर फुल टाइम, मतलब वो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे उस टाइम पे, सब अपना अपना। अच्छा, तो इट्स मतलब लाइक एन 9th काइंड ऑफ, 10th के लोग क्या तो करते हैं। नहीं तो दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। मैं इतने कॉम्पिटिशन्स में गया ना, तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। जैसे ओएलएल में अभी जो फाइनलिस्ट थे वो सब मेरे दोस्त बन गए, तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे कई सारे कॉम्पिटिशन में दोस्त बने थे जो टॉप ऑफ देयर फील्ड्स थे। तो हम्म। वो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे अपने डोमेन में। कोई अच्छा, वो स्टार्टअप लोग कर रहा और भी था, कॉम्पिटिशन्स में थे या और सो वो लोग वो दोस्त के जो साथ। बने थे मेरे, वो हाँ कंपटीशन से ही बने थे। तो अच्छा। इससे मेरे को फायदा ये हो गया कि बिकॉज दे वर द फाइनलिस्ट, सो दे वर सिलेक्टेड फ्रॉम अ वेरी ह्यूज क्राउड। तो मेरे को ऐसे ढूंढना हम्म। नहीं पड़ा किसी को भी, या मेरे को स्पेसिफिकली सर्च नहीं करना पड़ा। मुझे पता था वो आदमी किस चीज में सिलेक्ट हुआ है, क्या चीज के लिए सिलेक्ट हुआ है। आई जस्ट गेट द पर्सन इन टच विथ मी एंड गेट इट ऑन बोर्ड। और उस टाइम वो अपना खुद कर ही रहे होते हो कुछ, तो आई विल हेल्प देम, दे विल हेल्प मी, सो दैट्स व्हाई। तो एक एग्रीमेंट नहीं था, इवन दे आर नॉट रेडी टू बी इन एग्रीमेंट, बिकॉज वो अपना कुछ कर ही रहे थे, तो दैट्स व्हाई। हम्म। तो कोई एग्रीमेंट नहीं था, बस एज अ आप लोग मिले थे या कोई कंपटीशन में, एंड वो आपको हम्म अच्छे लगे, आप उनको अच्छे लगे, तो आप लोग ने डिसाइड किया हम्म एक दूसरे पे मिल के कंपनी चालू की। एग्जैक्टली। फिर आपका जो आइडिया आया था वहां से, फिर आपने ये आइडिया इन लोग के साथ शेयर किया या क्या हुआ था फिर नेक्स्ट। सो आई आस्क्ड देम फॉर हेल्प रिगार्डिंग दिस। तो एट दैट टाइम ना हम लोग एक्चुअली अपने एक नासा वाले इवेंट के लिए भी तैयार कर रहे थे, अगर पता हो आपको। तो हम लोग क्या, हमने सोचा कि काम करते हैं हम लोग साथ में नासा वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड विद दैट ऑल्सो, जो भी मेरा, देखिए मेरा बेसिकली पर्सपेक्टिव ये था। मैंने उनको कहा यू हेल्प मी इन दिस बिल्डिंग दिस कंपनी, जैसे अलग अलग उनके पास जो स्किल सेट्स है उनसे, और आई विल गेट देम टू बी इन द इनिशिएटिव ऑफ द नासा एचआरसी जो मैं स्टार्ट करा था। तो ऐसा हुआ। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग को याद है, मतलब इट्स लाइक कैसे सर्कुलेशन में थे। ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स मेंबर्स थे या फिर सर्टेन पीपल ही थे। आई वॉज ऑल अलोंग अलोन इन दिस होल इनिशिएटिव। स्टार्टिंग से ही मैं अलोन था इसमें और फुल टाइम दे रहा था। अदर पीपल आर लाइक पार्ट टाइम, कोई आया कोई नहीं आया, जब भी जिसको फ्री टाइम मिला या जब भी मैंने हेल्प मांगी उन्होंने कर दिया, इट्स लाइक दैट। तो हम लोग साथ में इवेंट्स भी पार्टिसिपेट किया करते थे उस पे। एंड साथ ही साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ में, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपटीशन आया, ओके, एंड देयर वाज, तो एक हमारा ग्रुप होता था। तो हम लोगों ने उसको रखा था टॉप टॉप ऑफ द लाइन ग्रुप, उस ग्रुप का नाम था। अब कोई भी कंपटीशन होता था, वी विल जस्ट पोस्ट दैट लिंक इन देयर। एंड उस ग्रुप में अराउंड 100 पीपल थे फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आउट ऑफ 80 ऑफ देम ऑलवेज गेट शॉर्टलिस्टेड। इट्स एन कल्ट देयर। जो वाह। शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ उसको हम लोग बहुत रोस्ट करते थे। इट्स वाज अ कल्ट देयर कि हु विल गेट शॉर्टलिस्टेड इन दैट और इन दोज, एंड अलग अलग कॉम्पिटिशन्स थे। तो वैसा कुछ था हमारा वहां पे। तो हम लोग वो भी क्या करते थे, एक कम्युनिटी बनानी थी हम लोगों ने आपस में, हम सब एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। एंड वी हम्म। डू स्टफ अ लॉट। तो उस टाइम पे जो मेरा वर्क था, मैं उस टाइम मैंने कभी फुल टाइम एम्प्लॉय रखने का सोचा ही नहीं। मैंने बोला ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कैन डू एज पार्ट ऑफ टेक्निकल वर्क। जो हम्म। चीज मुझे नहीं आती, जैसे अब मुझे सोशल मीडिया उतना अच्छे से नहीं आता, मैं अभी इंस्टाग्राम पे नए नए हूँ कह सकते हो। हाँ। या फिर मुझे जो कंटेंट वो मुझे अच्छे से नहीं आता। सो इन ये जो कोर स्किल्स होती हैं, ये स्किल्स के लिए मैंने अपने दोस्तों की हेल्प ली। एंड देन आई स्टार्टेड। अभी हमारे पास फुल टाइम पीपल हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं। उस टाइम पे तो नहीं। आफ्टर आई थिंक 6 months ऑफ इनकॉपरेटिंग माई कंपनी, आई गेट देम फुल टाइम। सम ऑफ देम आर राइट नाउ, जो स्टार्टिंग में था, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी है उनमें जो भी स्टार्टिंग, बिकॉज वो अपना खुद वेंचर कर रहे हैं, तो दे डिडंट गेट द टाइम। सो दैट्स, गॉट इट, गॉट इट। सो ओके। अभी तो काफी लोग हैं, हाँ। हाँ, तो स्टार्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बिल्डिंग था, मतलब वो क्लियर था स्टार्टिंग से कि हॉस्पिटल में ड्रोन बनाना है या कुछ, मतलब जैसे आपने बोला था कि या काफी सारे सो आइडियाज थे मैंने तो। इसके, हाँ। हाँ, इसके लिए एक्चुअली चीट शीट ये था कि कंपनी चालू करने से 2 साल पहले ही मैं काम कर रहा था इस आइडिया पे अकेले। सो ओके। तो मैं अपने दिन का 1 घंटा आधा घंटा ऐसे देता था हर रोज। तो दोस्त मैक्सिमम जो वर्क थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल वर्क था वो ऑलरेडी डन था।
और जहां तक बात रहा कि इस आइडिया में जो भी चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जो भी चेंजेस हुए हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ही चेंजेस हुए हैं, बिकॉज आई वाज वेरी बैड एट बिजनेस एट दैट। इट्स न्यू थिंग फॉर मी। तो स्टार्टिंग में मेरे सबसे बिजनेस पर्सपेक्टिव में ही होते हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आई वाज वेल अवेयर कि क्या एक दिक्कत आई नहीं। तनिष्क तनिष्क ये वाला व्हेन आई part एक बार। इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, दिक्कत तनिष्क जो तनिष्क, हमें आपका आई है। आवाज वीडियो थोड़ा क्रैक हो रहा है। हम्म। हाँ, अब ठीक है। अब एक बार वापस से वो बता सकते हो, लाइक एग्जांपल। हाँ, अभी अभी तक एक सेकंड वापस क्रैक हो रहा है। शायद मेरा इंटरनेट खराब है, नहीं मेरा इंटरनेट ठीक है, एक बार आपका चेक करो। आपकी आवाज, चल मैं चेक करता हूँ। हाँ, अब अभी क्रैक है। क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ, ओके। या विच पार्ट? वहां से जैसे कि आप बोले थे कि मैं बिजनेस में अच्छा नहीं था, बट प्रोडक्ट हाँ बिल्ड हो गया था वैसे। हाँ। सो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो था वो 2 साल मैंने वर्क करके बिल्ड कर लिया था, हाउ टू वर्क। जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट था वो था बिजनेस पॉइंट, कि इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसमें मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी। सो इनिशियली तो मेरा प्लान इसके रिगार्डिंग ये था कि हम लोग, विच इज वेरी डम उस टाइम पे, मैंने ये प्लान करा था कि मैं जाऊंगा आर्मी पर्सनल्स के पास, सीईओ कमांडिंग ऑफिसर्स के पास, उनको जाऊंगा, उनको बोलूंगा, उनके सामने प्रपोजल रखूंगा कि आप ये ड्रोन खरीदो। सो दैट्स द ओनली बिजनेस मॉडल आई हैव, हाँ विच वॉज वेरी अनसस्टेनेबल, वेरी अनसस्टेनेबल। सो और ये बिल्कुल फ्लॉप हुआ, बिल्कुल। मैं जिसके पास भी जाता था वो मुझे दूसरे को रिकमेंड करता था, मैं दूसरे के पास जाता था वो तीसरे को रिकमेंड करता था। सो रिकमेंडेशन गेम चलता रहा। हाँ 1-2 महीने तक यही चलता रहा, फिर मेरे को समझ में आया ये काम नहीं करने वाला। देन वी गेट टू द अदर मॉडल, कि हम लोग इसको सब्सक्रिप्शन और इस तरीके से रन करेंगे। तो मुझे एक्चुअली उस टाइम हम लोगों ने काफी, एक फायदा इस चीज का ये हुआ कि हमने काफी जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनको, उनसे कॉन्टेक्ट्स बना लिए। एंड वी गॉट अ कॉन्टेक्ट विथ मल्टीपल पर्सनल्स कि कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज ऑफ कोर्स एंड यूजर्स वही थे। सो हमने उनसे कांटेक्ट करा एंड दे टोल्ड अस कि तो ये हाउ चेंजेस हाउ आपको डिड यू करने पड़ेंगे। कांटेक्ट, मतलब डिफेंस पर्सनल तक कैसे पहुंचे आप, और तो कैसे वी, हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या कि पहले तक तो कोल्ड कॉल, कोल्ड कॉलिंग इज वेरी गुड, वो हमने किया, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करा, बिकॉज डिफेंस वेरी सिक्योरिटी देयर, तो कोल्ड कॉलिंग तो काम नहीं करा इसमें। हाँ, हम लोग आईडेक्स के पास में पहुंचे। आईडेक्स वाज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स। वहां पे हम लोग गए तो एक्चुअली हुआ क्या है कि आईएक्स में जब मैं गया तो वहां पे ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, मैंने सब पे कॉल करना चालू कर दिया। उन्होंने गलती से, मुझे लगता है अभी हटा दिया उन्होंने शायद से वहां से, उन्होंने एक पूरी डायलर लिस्ट दे रखी थी अपनी इंटरनल। और मैंने वो डायलर लिस्ट ली, मैंने सबको कॉल करने लगा। अब हुआ क्या, मैंने एक्चुअली एक हायर स्टाफ को कॉल करा, मैंने उनको अपना आइडिया प्रपोज करा, उनको आइडिया अच्छा लगा। एंड देन आई हाँ कॉल टू अनदर पर्सन, और वो मुझे उठा के, वो कॉल उठा के कहते हैं, हेलो, आप तनिष बोल रहे हैं? मैंने, यस सर, हाउ डू यू नो? वो कहते हैं आप जब जिससे बात करा वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। सो सो दैट इज हाउ इट ऑल पॉप्ड आउट। आईडेक्स ने हमारे बारे में ट्वीट भी करा, वी वर द यंगेस्ट स्टार्टअप वंस जिन्होंने वहां पिच कर रहा था, एंड दे रियली, करेक्ट। उन्होंने काफी अप्रिशिएट भी करा हमको वहां पे। तो आईडेक्स से हमने कांटेक्ट करा, और बात रही फिर एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, अगर आप एक या दो अच्छे डिफेंस पर्सनल से मिल जाता है जो दे रियली हेल्प, जो अच्छे हेल्प करते हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, वो खुद ही और औरों से कनेक्ट करवा देते हैं आपको। सो यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू 1 or 2 पर्सन, दैट्स इट। तो हम उनसे रीच करें, उन्होंने हमें आगे रिकमेंडेशंस दे दी, तो वहां से फिर हम लोग को एक पाथ मिल गया कैसे करना है। तो हमारे पास काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स एट दैट टाइम। देन वी ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू ऑर्डर्स, बिकॉज हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, देन वी गेट द रेवेन्यू। सो ऑर्डर से पहले ना मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक बार एक सर्वे कर लेते हैं एंड जानते हैं नीड्स क्या है, व्हाट द नीड्स ऑफ देयर दोज पीपल्स आर। हमने नीड्स के बारे में अच्छे से
सर्वे वर्वे किया, हमने पहले भी करे थे सर्वेस, बट हमने सर्वे स्पेसिफिकली ऑन दोज पीपल नहीं करे थे। हमने कह सकते हैं बहुत रैंडम, बहुत ही डम टाइप का सर्वे करा था जो कि बिल्कुल वर्कआउट नहीं करा था, और हमें अभी लगता है कि हमने क्यों ही करा था वो। तो जो हमने वो सर्वे करा, एंड देन वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने बहुत टेक्निकल चेंजेस करे उसके बाद, लाइक कह सकते हैं 50% ऑफ द होल थिंग वाज चेंज्ड आफ्टर दैट। तो ओके, सो सर्वेज जो बहुत वो हेल्प किए सारे बेसिकली, चेंजेस थे। मतलब इट्स वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट टू सर्वे। या। तो कैसे तो वो सर्वे कोई चेंजेस। कैसे करे, मतलब इफ आई एम समवन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो मैं सर्वे कैसे करूँ? हम्म। मतलब मेरे पास अभी कोई कांटेक्ट नहीं है डिफेंस में, तो या। कैसे मैं सर्वे करूँ? हाँ। हाँ। या। सो द बेस्ट थिंग टू डू द सर्विस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कांटेक्ट बना लो। सिंपल सा कांटेक्ट बना लीजिए। अगर आपको डिफेंस में सर्वे करना है, डिफेंस में सर्वे करना थोड़ा हार्ड होता है कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री, बिकॉज वहां पे लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं या डिस्क्लोज नहीं करते हैं डाटा को। मेरे पास एक नेपोटिज्म था काइंड ऑफ, बिकॉज मैं डिफेंस ब्रैट था, तो मेरे पास वो एक हाँ, नेपोटिज्म था कि मैं बोल सकता था कि माय फादर इज इन डिफेंस, तो जल्दी लोग ट्रस्ट कर लेते थे वहां पे। तो वो एक करेक्ट काइंड है। ऑफ मेरे को एक एडवांटेज था। बट जो पीपल अभी ट्राई कर रहे हैं नया इस इंडस्ट्री में आने का ट्राई कर रहे हैं, खासकर डिफेंस में, डिफेंस में घुसना सबसे हार्ड होता है, किसी भी इंडस्ट्री से हार्ड सबसे ज्यादा डिफेंस में होता है, बिकॉज वहां पे चीजें डिस्क्लोज नहीं होती हैं। लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सर्वे हम्म। गलत फॉर्म भरेंगे। सो 40% ऑफ द फॉर्म्स आर हाँ, फिल्ड रॉन्ग, मतलब गलत गलत इन्फॉर्मेशन भरी गई थी। 40% ऑफ द इन्फॉर्मेशन वॉज देयर रॉन्ग, जो मैं सर्वे से मिली थी, पहले सर्वे से। गूगल क्यों? फॉर्म्स तो गलत थे बेसिकली। हाँ, नहीं, उन्होंने जानबूझ के भरे थे गलत। उन्होंने अपने अच्छा। नाम गलत भरे, उन्होंने अपने रैंक गलत भरी, उन्होंने अपना प्लेस गलत भरा, सब कुछ गलत भरे जानबूझ के। बिकॉज वी फोर्स देम टू फिल, अब उनको फिल करना है लेकिन वो चाहते नहीं डिस्क्लोज करना। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है सर्वे व्हेन यू आर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। सो सर्वे करने के लिए अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है ना, आप एक काम करो, आप सबसे पहले जाओ आईडेक्स पे, ठीक है? वहां पे अप्लाई कर दो आइडिया को। वो क्या होता है ना, आईडेक्स पे जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपकी एक मीटिंग होती है। ओके। यू यू गेट अ चांस टू हैव अ मीटिंग, जहाँ पे वो लोग एक मीटिंग रखते हैं, आपके आइडिया सुनते हैं, और ये वहां पे ना कुछ हायर डिफेंस स्टाफ्स बैठते हैं। तो जो आपसे मीटिंग हम्म। कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं ना, जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस मीटिंग को, वो आपको कॉल करके बोलते हैं 10-20 मिनट पहले कि आपकी मीटिंग है, आप रेडी रहिएगा। यू गॉट हिज नंबर, उनसे अच्छी बना लो। वो आपको सबका नंबर दे देंगे, और वो रिकमेंड भी कर देंगे आगे, ठीक है? उनके पास पहुंचे, वहां पे पहुंच करके आपको बस इतना बोलना है उनको जा करके सर्वे के लिए, सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, बोलना ऑलवेज बी हेल्प हैंड, हेल्पिंग हैंड, मतलब एक ऐसे अप्रोच से जाओ कि आप हेल्प करना चाहते हो। डोंट बी हैव द अप्रोच कि आप पैसे कमाना चाहते हो। अगर आप वहां जाओगे, डिफेंस में बोल रहा हूँ मैं हम्म। स्पेसिफिकली, अगर आप ऐसे जाके बोलोगे ना, सर वी आवर कंट्री को अर्न मनी, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्री में पैसा ला सकते हैं, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। दे डोंट केयर अबाउट मनी, दे ओनली केयर अबाउट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, डिफेंस पर्सनल। तो हम राइट। गए उनके पास, हमने उनको बोला कि सर हम ऐसा ऐसा हेल्प करना चाहते हैं। हमने एक भी रेवेन्यू बिजनेस कुछ बात नहीं करा, हमने सिर्फ आइडिया के बारे में बात करा वहां पे। अब दे बोले ओके ठीक है, सही है, अब एक काम करते हैं, हम आपका ये जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं हम वहां पे फॉरवर्ड कर देते हैं, आपका जो भी कॉल है, लीड है, वो आप उनसे बात करते हो। हम लोग वहां से अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर आपको पता हो, जो नीट अगर आप देते हो, नीट एग्जाम, सो जो टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके AIR 1 2 10 15 20 100 ऐसे आते हैं, वो हम्म। चूज करते हैं AFMC, जो कि मेडिकल ब्रांच होती है, बहुत अच्छी ब्रांच होती है, जिसमें आप डिफेंस के अंदर डॉक्टर बन सकते हो। सो ओके। एक अच्छा अप्रोच ये था कि हमें एकदम अच्छे डॉक्टर से सलाह मिली, जो अपने लेवल में जो जो भी एग्जाम्स थे उनको टॉप कर रखे थे। सो बिकॉज यहाँ टॉपर्स ही आते हैं, तो उनसे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी सर्वे मिल पाया। बिकॉज अगर हम किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ कोई भी डॉक्टर्स रहते हैं जो उतने अच्छे नहीं रहते, बट हम्म। यहाँ हमें काफी अच्छा अप्रोच मिल गया। तो हमें अच्छे सर्विस मिल गए, अच्छे सब कुछ मिल गया। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस तो मिल गए बट उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। देन वी गॉट इनटू अ प्रॉब्लम कि सर्वे में जो डाटा बोला गया वो पॉसिबल ही नहीं है। अब उन्होंने हमें बोला वहां पे सर्वे में कि आप एक्सरे मशीन पहुंचा दो बॉर्डर्स पे। ओ। हम बोले सर देर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं टेलीपोर्टेशन मशीन नहीं बना सकता यहाँ पे कि वो करेक्ट। करो, बना तो आपको कांटेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है। सो देर आर सो मेनी लिमिटेशंस, बट उनकी नीड्स थी। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली देखा इंडस्ट्री में काम कौन कर रहा है इन चीजों पे। अभी एक होता है कि आप खुद बैठ के पूरा चीजों पे काम करो, है ना? अब जो नॉर्मल बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, आउटसोर्स करता है। जैसे बोट को आज हम देखते हैं,
सब अभी तो बोट मेड इन इंडिया कर रहा है, बट पहले वो सारे पार्ट्स कहाँ से आउटसोर्स करता था? चाइना से। स्टार्टिंग में करेक्ट। उसने सारे पार्ट सब कुछ कहाँ से आउटसोर्स करे? चाइना से। अभी वो पूरा मेड इन इंडिया अपने ब्रांड को दिखा रहा है, वो असेंबली इधर कर रहा है, भले ही पार्ट्स चाइना के ही हैं और वहीं से आने हैं क्योंकि वहां सस्ता है। अभी बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव है। तो कोई नॉर्मल इंसान बोलेगा यार हम खुद बैठ के बनाएंगे, इनोवेशन करेंगे, और ये, और मेरे इंडस्ट्री में बहुत ये पीपल बहुत करते हैं। 5 5 6 6 साल बैठ के खुद उसको इन्वेंट करने में लगाएंगे, और बनने के बाद फिर बिजनेस पे सोचेंगे कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं। मैंने हाँ। वहां पे दूसरा अप्रोच लिया, मैं गया, मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में मैं गया एक इवेंट में, आईआईएसएफ में आए थे अलग अलग स्टार्टअप्स बिजनेसेस जो मेडिकल केयर में वर्क कर रहे थे। मैं बस उनके कांटेक्ट लेके आ गया और मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको आउटसोर्स करते हैं। तो हमने बहुत सारे सेंसर्स जो थे वो आउटसोर्स करे। हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमें काफी अच्छे होलसेल रेट्स पे वो सेंसर्स प्रोवाइड करवाए, और वो हमने अपने ड्रोन में माउंट करे। तो अभी क्या हुआ कि तो जो कौन नीड्स से थी उनकी, सेंसर्स ड्रोन में माउंट कर? लाइक वी टॉक अबाउट शुगर सेंसर जो था वो बिल्ड करना बहुत हार्ड होता है। और उसकी हम्म। जो करंट टेक्नोलॉजी है उसके पेटेंट्स भी बहुत महंगे हैं, अगर आप राइट्स भी लेने जाते हो उनसे तो बहुत महंगे होते हैं। तो हमने वो उसको थोड़ा क्रैक करा कोल्ड कॉल करके कि ठीक है इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। हमने उनको ऐसे बोला कि हम कुछ अच्छा इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं, आप हम्म। अभी स्टार्टिंग में सपोर्ट करो, फ्यूचर में हम आपके पेटेंट राइट्स भी खरीदेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप थोड़ा इनिशियल स्टेज में हमें सपोर्ट कर दो। तो दे गॉट ओके, ठीक है हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुगर वैसे हमारा सेंसर आगे बढ़ा। और क्या था? बेसिकली ना इस सेक्टर में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीगलाइजेशन। हम्म। डीजीसीए अप्रूवल, मेडिकल अप्रूवल, बहुत अप्रूवल्स हैं इस सेक्टर में, इतने अप्रूवल्स है कि आप मतलब आपका सर दर्द करने लगेगा। लेकिन द थिंग इज दैट एक बार अगर वो आपको अप्रूवल मिल गया तो वो आपकी यूएसपी बन जाती है, because हम्म। there are not that many startups in country that has those approvals. तो डीजीसी अप्रूवल मिलना अपने आप में एक अचीवमेंट होती है, आईपीओ से बड़ी अचीवमेंट होती है इंडिया में। अगर आपका आईपीओ लॉन्च हो रहा है ना, वो तो एक अचीवमेंट है। उससे बड़ी अचीवमेंट है डीजीसी अप्रूवल मिलना। इट्स अ वेरी ओ, हार्ड थिंग टू गेट इन ड्रोन सेगमेंट, हम्म। खासकर जब हम बात करते हैं माइक्रो ड्रोन्स के बारे में। तो वहां पे था, देन वी गॉट अनदर प्रॉब्लम कि जो तो वो बोल आपने रहे थे। कैसे आपको कोई अप्रूवल मिला? हाँ, वी हैव ऑल द अप्रूवल्स, डीजीसी अप्रूवल है हमारे पास पेटेंट ग्रांटेड है। क्या बात है! तो वो भी। कैसे कैसे मिला ये अप्रूवल्स, कैसे मिली? सो बेसिकली इन अप्रूवल्स का सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेक्निकल डाटा। अगर आप टेक्निकली साउंड स्टार्टअप हो तो वो आपको जल्दी मिल जाते हो, अगर आप बिजनेस साउंड स्टार्टअप हो तो थोड़ा लेट होता है इन सब चीजों में। तो हमने, क्योंकि मैं 2 साल से इस पे काम कर ही रहा था टेक्निकली, तो मेरे पास काफी अच्छा डाटा, काफी अच्छा रिसोर्सेज थे ऑलरेडी। तो हम्म। ये मिलने में हमें टाइम नहीं लगा। मेनली प्रॉब्लम इंडिया में इन अप्रूवल्स को मिलने में यही होती है ना कि जो कमिटी होती है, इनकी अप्रूवल कमेटी होती है, वो इतने हायर ऑफिशियल से फॉलो अप होती है कि मान लो अगर कोई ड्रोन की है तो वो लोग दुबई से ले आएंगे ड्रोन एक्सपर्ट को, वो बोलेंगे ओके। बैठो आप अप्रूवल करो। तो ऐसे भी होता है इसमें, ठीक है। तो दे वर पीपल जो एकदम टॉप ऑफ देयर क्लास होते हैं जो इसको रिव्यू करते हैं, एंड दे डिडंट मिस अ सिंगल चांस रोस्ट करने में। वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, बट अगर आप टेक्निकली साउंड हो तभी उस अप्रूवल्स को आप आगे कर पाओगे। सो हम लोग वहाँ पे टेक्निकली साउंड थे तो हमने उनको निकाला। फिर भी हमें काफी प्रॉब्लम्स आई उस अप्रूवल में भी, बट स्टिल हम्म। लाइक 2 3 महीने लग गए, लेकिन हमें अप्रूवल मिल गया। नॉर्मल टाइम होता है एक से 1.5 साल अप्रूवल लेने का। तो वाह। हमें 2 3 महीने में ही अप्रूवल मिल गया था उसके रिगार्डिंग। तो वहां से भी हो गया। प्लस डीजीसी में थोड़े कनेक्शंस भी थे तो वो भी हमें हेल्प करे काफी ज्यादा। वो भी इवेंट्स के थ्रू ही होते हैं, इवेंट में डीजीसी खुद आता है वहां पे भी। तो वहां से भी हो गया। तो इट्स ओवरऑल विन विन सिचुएशन फॉर अस। सो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब हमें पता चला कि अभी तो चलो हम सेंसर्स और ये सारी चीजें आउटसोर्स कर रहे थे, तो आई हैव अ टोटल कॉर्पस ऑफ 25 lakhs इन माई सेविंग अकाउंट। उतना था मेरे पास। एंड मेरे को ये था कि मेरे को इसको इन्वेस्ट करना है अब। अराउंड 15 lakhs वॉज इन्वेस्टेड ऑलरेडी, एंड हमारे पास एक नॉर्मल प्रोटोटाइप रेडी था। अब हमें हम्म। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो चीज हमें फाइनल प्रोडक्ट को उतारनी है मार्केट में, वो चीज कॉस्ट करेगी हमको 1.2 CR टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। ओके। क्यों? देखिए ड्रोन सेगमेंट में ना कंट्री में बहुत कम स्टार्टअप्स हैं। अगर मैं कुछ गिने चुने नाम बताऊं, आइडिया फॉर्ज, गरुड़ा, है ना, बहुत कम गिने चुने अच्छे स्टार्टअप्स है जो काम कर रहे हैं, रैल्स एम्फिबियर ये सब। और क्यों है? क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसमें इनिशिएट करने के लिए को बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है।
इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, हम्म। इसीलिए इस सेक्टर में जल्दी कोई एंट्री नहीं लेता। लेकिन हम्म। एक बार अगर आपने एंट्री ले ली, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। अब अगर आप शादी वाले ड्रोन को देखोगे तो आपको हाँ। एक ही कंपनी का मिलेगा, DJI। ठीक है, DJI इज द एप्पल ऑफ फोन्स। फोन में जैसे एप्पल होता है वैसे ड्रोन्स में DJI होता है। बट द प्रॉब्लम विद द DJI इज इट्स अ चाइना बेस्ड कंपनी। वो सारा कुछ चाइना में अपना आउटसोर्स करती है, इंडिया में एक भी सर्विस सेंटर नहीं है उसका। बट स्टिल पीपल बाय दोज DJI ड्रोन्स, और ऐसा नहीं सस्ते हैं वो, 1.5 1.5 लाख 2 2 लाख से चालू होते हैं उनके ड्रोन्स। तो दे आर वेरी प्रीटी एक्सपेंसिव, बट सर्विस सेंटर एक भी नहीं है उनका। तो प्लेयर नहीं है मार्केट में उतने अच्छे। इंडिया में उनका मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग एंट्री नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस इन हेयर देन हम्म। अदर कंट्रीज। वो रेगुलेशंस के चक्कर में पड़ने की वजह उन्होंने मार्केट ही छोड़ दिया अपना। गरुड़ा है, आइडिया फोर जे, सब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं ज्यादातर। इनका मेजर मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर में है। ओके। एग्रीकल्चर में मेरे हिसाब से वन ऑफ द डमेस्ट थिंग टू डू इन ड्रोन सेक्टर इज एग्रीकल्चर। आई कैन से इट ओपनली, मैं बहुत जगह बोलता हूँ। एग्रीकल्चर इसलिए डमेस्ट सेक्टर है और सब लोग इसी के पीछे भागते हैं, सबसे डमेस्ट सेक्टर है बिकॉज एक किसान है, इंडिया का किसान यूएस के किसान जैसा नहीं है। यूएस हाँ। के किसान अमीर होते हैं, उनके मैंशंस होते हैं, इंडिया में वैसा सीन नहीं है। यूएस में ये आइडिया बहुत अच्छा काम करेगा, अदर कंट्रीज में अच्छा काम करेगा, इंडिया में ये आइडिया काम नहीं करने वाला। हम्म। बिकॉज एग्रीकल्चर ड्रोन की कॉस्ट होती है 20 लाख रुपए। एक किसान वो उतने में जमीन खरीदेगा, वो अपनी प्रोडक्शन डबल कर लेगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सर्विस बेस कर सकते हो लेकिन वो भी नहीं लेगा, क्यों? तो देर आर नॉट दैट मेनी प्लेयर्स, तो सर्विस भी कितने की पड़ती है? तो 5,000 6,000 रुपए एक बार हम्म। यूज की। उतने में हम लोग हफ्ते भर 2 महीने का आराम से ट्रैक्टर लेंगे रेंट पे, और मस्त यूज करेंगे अपने खेत में, खुद करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे, पायलट को कोई पैसा नहीं देना, कोई कॉस्ट नहीं देनी, कोई सर्विस, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वो ऑलरेडी ट्रेडिशनल जो है वो फेमिलियर भी है ज्यादा। तो एग्रीकल्चर एक बहुत डम सेक्टर है टू एंटर इनटू ड्रोन्स। ड्रोन्स का एक्चुअल में यूज डिलीवरी, डिलीवरी भी अभी नहीं, डिलीवरी सेक्टर अभी रेडी नहीं है इसके लिए। हम्म। amazon ने ओवर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए डिलीवरी सेक्टर में। डूब गया पैसा उनका पूरा डिलीवरी में। तो उन्होंने बहुत अर्ली कर दिया ये चीज। हाँ। डिलीवरी के लिए अभी ले लो आप, 6 से 7 साल लगेंगे डिलीवरी सेक्टर को रेडी होने में इंडिया में। जहां तक बात रही मेडिकल सेक्टर की, वो भी अभी टाइम है, 2 से 3 साल अभी उसको भी टाइम है, मेडिकल सेक्टर को भी टू बी रेडी। द प्रॉब्लम विद ड्रोन इज दैट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हाँ। वो काफी अभी नया नया चीज है, नया नया टेक्नोलॉजी उनको लगता है, वैसे तो नया नहीं है लेकिन उनको ओके। लगता है दिस इज वेरी न्यू टेक्नोलॉजी और समथिंग। सो इट सो मतलब अभी ले लीजिए काफी टाइम है ड्रोन। जैसे AI आया हुआ है ना, ओपन AI पे लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा था। आज देखोगे हर जगह एप्पल ओपन AI के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, गूगल compete कर रहा है, एंड एवरी थर्ड कंपनी हैज AI इन देमसेल्व्स। हर करेक्ट। तीसरा करेक्ट। कंपनी AI को अपना मोटो बता के बात कर रहा है। तो अभी देर इज अ वेव ऑफ AI। वैसे ही एक टाइम आएगा व्हेन देर इज अ वेव ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वेव जब आती है ना, तो उसमें वो कंपनियां प्रॉफिट बनाती है जो वेव से पहले एग्जिस्ट करती थी। जो कंपनी अभी, जैसे अभी एरा एरा है ना, अभी जो कंपनी फॉर्म होगी वो कुछ खास नहीं करेंगी। लेकिन अभी से पहले जैसे ओपन AI, गूगल, ये सब कंपनीज थी ना, ये ज्यादा प्रॉफिट करेंगी इसमें। हम्म। सो अभी अगर मैं ड्रोन मार्केट में तब घुसने वो का जो सबसे बेस्ट टाइमिंग टाइम है। होता है जब आप चालू करते हो वो बहुत मैटर होता है बेसिकली वेन एवर यू स्टार्ट। एग्जैक्टली। जो इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो है, जो टाइमिंग है, वो हम्म। बहुत जरूरी है। अभी मैंने मेरे 20 कंपनियों को जानता हूँ, मेरे दोस्त चालू करने की सोच रहे थे इन द सेक्टर ऑफ बिटकॉइन एंड NFTs। कुछ 20। अता पता नहीं है NFT कहाँ है, कुछ अता पता नहीं बिटकॉइन कहाँ है, करेक्ट। वेब 3.0 कहाँ है, कोई आइडिया नहीं है। सब एक वेव आई चली गई। हम्म। अभी AI की वेव आई है, अब AI की वेव भी जाएगी, अब कुछ और आएगा वहां पे। ठीक है, सो इट्स अ मैटर ऑफ सर्कुलेशन, कुछ ना कुछ नया मार्केट में आता रहता है। बट प्रॉफिट वही करेगा जो पहले से एग्जिस्ट करता है, तभी उस वेव में वो पैसा निकालेगा। वही हमारी थिंकिंग है, इस अप्रोच है इसके रिगार्डिंग। और एग्रीकल्चर में मैं खुद आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बहुत जगह बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर हम लोग कल को $1 बिलियन कंपनी भी बन जाते हैं, लेट सपोज, हम्म। ठीक है, 10 साल बाद मैं बन जाता हूँ, बहुत टाइम है लेकिन फिर भी मैं एग्रीकल्चर में नहीं घुसने वाला। मैं एग्रीकल्चर में तभी घुसूंगा जब इंडिया मुझे अमेरिका 2008 का अमेरिका की जो फेस है वो दिखने लगेगा।
अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है, बट अभी वो टाइम नहीं है कि आप एग्रीकल्चर ड्रोन्स को इंडिया मार्केट में उतार सको, बिकॉज मार्केट इज नॉट रेडी सिंपली। हम्म। अभी आप एक ही सेक्टर है जो रेडी है और जिसमें आप ड्रोन्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, दैट इज फोटोग्राफी ड्रोन्स, या जो टॉय ड्रोन्स होते हैं। दो ही सेक्टर है जो भी करेंटली यूज में है सबसे ज्यादा, इसके अलावा और Correct. कोई सेक्टर अभी रेडी है ही नहीं, सो दैट्स द प्रॉब्लम। Okay, got it. या ठीक है। एंड माय लास्ट फ्यू क्वेश्चंस टू यू। तो पहले तो हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट स्किल टाइटंस? द मतलब कैसे पता चला कि ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे अप्लाई किया, एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? या ये सो थोड़ा। मैं आपसे मिला व्हेन आई वाज इन नविष्कार, वहां पे हम लोग रनर अप थे, एंड आई गॉट इन टच विथ यू। आई वाज लाइक एवरी डे फॉलोइंग योर प्रोफाइल, में स्टोरीज देखता था, मैं पोस्ट देखता था। वन डे आई केम अक्रॉस योर पोस्ट रिगार्डिंग द ओएलएल स्किल टाइटंस, एंड आई थॉट टू अप्लाई इन दैट, एंड आई अप्लाइड इन दैट। एप्लीकेशन प्रोसेस में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, देन आफ्टर दैट आई गॉट द सिलेक्शन स्टांस देयर, and it was in Delhi. I was in Bhatinda, Punjab. So I traveled there to Delhi. अब जब मैं दिल्ली पहुंचा ना, तो मुझे एक्चुअली में लगा कि दिस इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ कंपटीशन देयर। हाँ। बट जब मैं वहां गया एंड जब मैंने वहां का जो एक माहौल होता है, जो वहां का एक कम्युनिटी होती है, वहां पे लोग, मैंने बच्चे देखे और मैंने देखा कि दे आर स्टूडेंट्स। और ये मैंने और एक्चुअली में कहीं नहीं देखा, मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मैंने कहीं और नहीं देखा, सिर्फ वहीं देखा मैंने एक चीज। नॉर्मली इस इंडस्ट्री में कोई भी बातचीत नहीं करता, ठीक है। हमारे जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, इनोवेशन कम्युनिटी में कोई बात नहीं करता, सब अपने एटीट्यूड में रहते हैं। ये ऑनेस्टली मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, कोई बात नहीं करना चाह रहा। कोई किसी को नहीं पड़ी है क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सब लोग अपना अपना देखते हैं, अपना इनोवेशन देखते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत इस इंडस्ट्री का यही है कि सब लोग सोचते हैं कि हाँ, मेरा आइडिया कोई ना कोई चुरा लेगा। सबको लगता है कि मेरा आइडिया कोई ना कोई चुरा लेगा, लेकिन जबकि किसी को नहीं पड़ी है सामने वाले का आइडिया क्या है क्या नहीं है। बिकॉज सी, आप जब अपने आइडिया पे काम करो तो वो आपका सपना है, आपका आइडिया है, वो सामने वाला नहीं है, Correct. सामने वाले का सपना नहीं है। वो कुछ भी कर ले, वो नहीं जा पाएगा उसमें, ठीक है। सबको लगता है कि वो कोई ना, मैं आइडिया बताऊंगा सामने वाले को, वो मेरा आइडिया चुरा लेगा, मेरे से अच्छा कुछ कर लेगा। और जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पहले चालू करके कुछ अच्छा बना सकते हो, तो हाउ डू, तो छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो ये चीज। जब वो खुद पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पहले फर्स्ट स्टार्ट करके भी अच्छा कर सकते हो, कि सामने वाले बस आइडिया सुन के चुरा लेगा, तो फिर व्हाई टू वर्क ऑन दैट आइडिया इटसेल्फ, है ना। हम्म। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और इसीलिए कोई बातचीत नहीं करता, बिकॉज सबको लगता है कि आइडिया चुरा लेगा। तो वहां पे मैं जब गया ना, वहां पे मैं ऐसे लोगों से मिला जो सामने से आकर के पूछते हैं व्हाट्स योर आइडिया, क्या कर रहे हो, क्या इस डोमेन में कर रहे हो। वो मुझे काफी हम्म। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस डोमेन, बिकॉज आज से पहले मैं बहुत कंपटीशन में गया हूँ, वहां ये बिल्कुल नेटवर्किंग वाला पार्ट नहीं है। बिजनेस इवेंट्स में नेटवर्किंग एक अपने आप में एक अलग चीज होती है, बट मैं बात कर रहा हूँ इनोवेशन कॉम्पिटिशन्स में। हम्म। तो जो लोगों ने इनोवेशंस भी कर रहे थे ना, मुझे काफी अच्छे लगे उनको देख करके। जैसे वहां पे मैं कई लोगों से मिला वहां पे, एंड मैं अभी भी उनसे कांटेक्ट में हूँ। दे वर ग्रेट डेवलपर्स, बहुत ग्रेट हम्म। डेवलपर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने सेक्टर में। वेब डेवलपमेंट में मैं एक स्टूडेंट से मिला, वो उस लेवल का वर्क कर रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट लेवल, मतलब हाँ। उसको माइक्रोसॉफ्ट लेवल के एम्प्लॉयज को मैंने करते हुए देखा है। सो ही वॉज देयर, मैंने उनसे बात करी, उसे समझा क्या है क्या नहीं है, मैं उसे सीखा वहां पे कई चीजें। आज भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में है। तो नॉर्मली इस चीज को होने में लगता है टाइम। ये जो एक होता है ना, एक बॉन्ड क्रिएट होने में बिटवीन सम हाँ। अदर फेलोज, टाइम लगता है। वो लगता है 2 महीना 3 महीने का टाइम लगता है नॉर्मली, बिकॉज सामने वाला आप पहले जानेगा, आप समझेगा, आप बोलेगा अरे चुला तो नहीं लेगा मेरा आइडिया। वहां पे ये चीज इंस्टेंटली हुआ। और मैं वहां पे जो हमारे साथ में थे, भानुश्री थे और भी थे जो फाइनलिस्ट गए थे मेरे साथ में, वो हम्म। भी वहां पे थे। तो उनसे तो अलग, उनसे भी आज मैं कांटेक्ट में हूँ, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे थे। उनसे भी एक ऐसा बॉन्ड हुआ, वहां गए हम लोग, सबसे पहले हम लोग वहीं बात करने लगे उनसे, ठीक है। हाँ। तो एक टाइप ऑफ एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट बन गया था हम लोग का, काफी अच्छा लगा हम लोग को वहां पे। तो वो काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस था फ्रॉम द ओएलएल स्किल टाइटन। एंड ऑफ कोर्स जो मेंटर से हम लोग मिले वहां पे, वो तो और अच्छा, एकदम मतलब सोने पे सुहागा कह सकते हो आप। तो एकदम मजा ही आ गया। एंड सबसे बड़ी चीज जो मिली यहाँ पे मेरे को, एक तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल बेनिफिट, बिकॉज इस कंपटीशन के बाद मुझे सब लोग यही पूछ रहे थे
कि पार्टी कब दे रहे हो, पार्टी कब दे रहे हो। आई डिड रिकॉर्ड, अगर मैं सबको पार्टी देने लगता ना, आई वॉज -5 लाख इन डेप्ट। ठीक है। तो और और सब मुझे ही सोचते कहाँ यूज करा पैसा, कहाँ यूज करा पैसा। बहुत कम लोग जानते हैं 70% ऑफ दैट मनी स्टिल इन माई बैंक अकाउंट, सेविंग्स में डले हुए हैं, एफडी डली हुई है। मैंने बिल्कुल टच नहीं करा उस पैसे को। ठीक वाह। है। तो मैं फ्रॉम मनी, मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा यही रहा है कि 2 रुपी यू वन अर्न, 1 रुपी यू सेव, 0.5 रुपी यू इन्वेस्ट, and 0.5 rupees is your needs and all and everything. That's हम्म what my approach. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मैं सबसे एकदम अलग रखता हूँ, पहले मैं उनको रखता हूँ, एंड देन आई विल कम टू द नीड्स एंड अदर पार्ट्स, सो या। गॉट इट। सो सबसे बड़ा पॉइंट आपने देखा कि नेटवर्किंग, कनेक्शंस, फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा हेल्प हुआ आपको वहाँ पे, एंड जो यप। मेंटरशिप मिला वो था। एंड टेल मी, लाइक, जो उस पे आने के बाद, व्हाट हम्म। वाज द इम्पैक्ट टुवर्ड्स योर बिजनेस, मतलब आपको ऑब्वियसली फ्रेंड्स फैमिली से, वो भी बताओ मुझे, फ्रेंड्स फैमिली से क्या हुआ, और बिजनेस बिजनेस का भी क्या इम्पैक्ट था, ये दोनों चीज। फ्रेंड्स फैमिली में थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई। नेशनल टेलीविजन पे आ रहे हो तो ऑफ कोर्स। एंड सबसे बड़ी चीज की लाइक सब लोग को विश्वास होने लगा। बस आज से पहले जो भी मैं करता था ना, मैं उतना, मैंने बोला ना मैं सोशल मीडिया पे नया नया हूँ, और मेरे सब लोग मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली सब सोशल मीडिया पे पहले से हैं, मैं बिल्कुल नया नया हूँ, मैंने अभी रिसेंट में ज्वाइन करे। तो मैं ना खुल के नहीं बताता था लोगों को मैं करता क्या हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था ये सारी चीजें, क्यों बताना सामने वालों की मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जब वो चीज आया, एयर हुआ, तो सब लोगों ने देखा उसको, तो बोले अच्छा ये भी कर रहा है, अच्छा वो भी कर रहा है, अरे ये तो इस नेशनल टेलीविजन पे आ गया, टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। तो वहां से एक अलग ही टाइप ऑफ प्राइड फील हुआ कि हाँ चलो, समवन इज रिकॉग्नाइजिंग माय वर्क कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम कंपटीशन ऐसे नेशनल टेलीविजन पे नहीं आते, बहुत हम्म कम है, और बहुत रेयर ही होता है कि ऐसा होता है कुछ कि सोशल मीडिया पे आप इतना एक्टिव हो जाते हो और इतना कुछ अ, आपको फेम मिलता है उस सेक्टर में। ऑफ कोर्स फॉलोअर्स तो बड़े ही बड़े, मतलब उतने भी नहीं, लेकिन हाँ फॉलोअर्स बड़े जरूर। एंड एक चीज ये था कि सबसे बड़ी बात वैलिडेशन मिल गया, बिजनेस पर्सपेक्टिव में आपको एक वैलिडेशन मिल गया। जब हम्म सामने अभी जो हमारे रिसेंट इन्वेस्टर अभी आने वाले हैं, M3M फाउंडेशन इज द नेक्स्ट इन्वेस्टर वी आर सीकिंग फंड्स अप टू, उन्होंने अभी अभी नासा वाले जो प्रोग्राम, तो उसके लिए 80 लाख रुपीज फंड्स भी हमें दिए थे हमारे नासा इनिशिएटिव के लिए। सो अभी वो भी हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टर ही आने वाले एज इन्वेस्टर। तो उन्होंने उनको ना कुछ याद नहीं है, उनको पता नहीं मेरा, अगर मैं उनसे जाकर बोला सर आप मेरा अचीवमेंट बता सकते हो, उनसे क्लोज रिलेशन है मेरा थोड़ा सा फाउंडेशन जो है, बिकॉज मैं उनके साथ में काफी काम कर चुका हूँ। तो हाँ। जब मैं उनसे जाके पूछता हूँ ना कि सर आपको मेरे अचीवमेंट्स के बारे में पता है, सबसे पहले उनका नाम आता है ओएलएल स्किल टाइटन। हाँ वो पता है मेरे को, कुछ और पता ना हो, लेकिन ओएलएल स्किल टाइटन उनको हमेशा उनके मुंह पे रहता है। सेम फॉर द फैमिली, सेम फॉर द अदर पीपल, सेम फॉर द हम्म इंक्यूबेटर्स, जो भी इंक्यूबेटर्स उनके इंक्यूबेशन मैनेजर से जाके मैं पूछूंगा ना कि मैम सर डू नो अबाउट माई अचीवमेंट्स, तो कहते हैं हाँ ओएलएल स्किल टाइटन में देखा था तुमको, वहाँ बहुत अच्छा किया तुमने, और ये और वो। एंड दैट्स द थिंग जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं ऑफलाइन रहता था, ऑफलाइन काम हाँ। करता था, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, मेरे को वो सब उतना शौक नहीं था। लेकिन जब मैं एक्टिव हुआ तो मुझे काफी अच्छा लगा कि लोग एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मेरे वर्क को, एंड एक्चुअली काफी अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव में एक वैलिडेशन मिला मुझे, और फैमिली फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव में मुझे इज्जत से कह सकते हो, हाँ वो मिल गई। एंड इन टर्म्स ऑफ, मतलब कुछ ऐसा रेवेन्यू फंडिंग क्या मिला, थोड़ा सा वो बता सकते हो ऑडियंस को कि हाँ। पहले आप कहाँ थे और अब आपका फंडिंग रेवेन्यू कितना है, या कैसा टीम साइज कितना। सो पहले हम लोग टीम ऑफ 3-4 पीपल्स थे, थोड़े और लोग भी थे जो एज ए इंटर्नशिप वर्क कर रहे थे। आज वी आर टीम्स ऑफ अराउंड अराउंड 15 to 16 पीपल्स वर्किंग ओके। कॉन्टिन्यूसली ऑन दिस आइडिया, एंड अगस्त में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड हम लोग अप टू 40 मेंबर्स की टीम होने वाले हैं। इन अगस्त हम लोग अभी एक हायरिंग प्रोसेस चालू करने वाले हैं। एंड बाय द टाइम जब हम लोगों ने पिच करा था, तो वी ओनली हैड वन ऑफर, मतलब हमारा भी पहला इन्वेस्टमेंट हुआ था 25 lakhs का एट दैट टाइम। वी गॉट टू सम वीसीज, और काफी फाउंडेशन से भी हमारी बात हुई। फाउंडेशन ने हमारे ऊपर 80 लाख रुपए तो एज अ ग्रांट डाल दिए बस,
टू वर्क अपॉन दिस एंड ईच एंड एवरी। नासा वाला भी इनिशिएटिव आया हमारा, वहां पे हमको काफी सपोर्ट मिला। पहले इंडिया में मनी रेज करना इज नॉट इजी, यू नो, खासकर ग्रांट्स, यू नीड अ लॉट ऑफ वैलिडेशन इन दैट। वो हमारे लिए काफी आसान हो गया। एंड 80 lakhs भी हमें वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिला। देन वी गॉट टू द पार्ट वेयर फंडिंग ऑफ दिस स्टार्टअप। अभी मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, हमारा एक टर्म शीट भी अभी रेडी हुआ है विच इज ऑफ 10 CR वैल्यूएशन का। एक फंडिंग राउंड अभी हम लोग करने जा रहे हैं बाय सिंगल इन्वेस्टर ऑफ M3M फाउंडेशन, जो आने वाला है हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टर। WTF फंड्स वहां पे हम लोग सिलेक्ट हुए अभी VCs के अंडर। वी गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल VCs कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको आगे आना चाहते हैं। इवन वाई कॉम्बिनेटर के जो इंडियन एम्बेसडर थे, जो वाई हम्म, कॉम्बिनेटर से इंडिया में हैंडल करते हैं, उन्होंने भी हमें इनवाइट करा। अभी उसके लिए मीटिंग अभी प्लान होनी है। उन्होंने कहा हम आपके साथ एक मीटिंग करना चाहेंगे इस साल, जो समर वाला प्रोग्राम होने वाला है उनका न्यूयॉर्क में। दे आर ऑल्सो टेलिंग कि आप वहाँ आओ, वहाँ पे आकर के आप नेटवर्किंग करो एंड वर्क विद अस एंड वी विल बिल्ड समथिंग टुगेदर। तो वहां से भी आया। तो एक काइंड ऑफ ना उस पहले OLL से पहले आई वॉज क्वाइट डाउन, आई वॉज नॉट दैट सोशली एक्टिव, नॉट दैट बिजनेसफुली एक्टिव। अभी मैं काफी एक्टिव हो चुका हूँ। एक अपने जो अंदर से मेरा जो चेंज हुआ है ना, सबसे बड़ा चेंज जो मेरे अंदर हुआ है वो ये हुआ है कि नाउ आई पोस्ट एवरीथिंग आई डू। अभी मैं कोई कंपटीशन जीतता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कोई भी प्रोग्रेस होता है, बुरा हो अच्छा हो, अब मैं सोशली उसको शेयर करता हूँ। हम्म, और सोशली शेयर करने से सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आई गॉट अ फीलिंग someone is with me who is looking at my journey, knows what I am doing, how I am been here, एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो ऑफकोर्स फंडिंग तो बहुत मिली ही मिली, मगर सबसे चीज ये कि मेंटरशिप भी काफी अचीव हुई इस पूरे हाँ प्लेटफॉर्म के थ्रू। हाँ इवन जो हमने अभी परीक्षा पे चर्चा करा था, तो वहां पे भी वहां पे भी हम लोग गए हुए थे। तो वहां पे भी एक सबसे बड़ा रोल OLL स्किल टैलेंट, सबसे बड़ा रोल ये था कि जो हमारे जो POC थे, जो जिन्होंने हमें वहां पे लेकर के गए थे, हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने जब प्रेजेंट करा, तो जो POC थे उनको भी हमने बताया था कि ऐसा ऐसा हमने करा हुआ है। तो उन्होंने वहां पे जो बोर्ड था, परीक्षा पे चर्चा में, एक ना वहाँ पे डिस्प्ले था जहाँ पे वीडियोस चल रहे थे ऑफ स्टूडेंट्स उनके वर्क के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मेरा वो एपिसोड्स भी चलाया था वहाँ पे, ओ परीक्षा पे वाओ चर्चा पे। एंड ओवर, आई थिंक ओवर 1400 to 1500 पीपल सॉ दैट देयर। सो अमेजिंग कम्प्लीटली, या सो वो भी एक अच्छा था। तो मुझे वहां भी काफी अच्छा लगा कि चलो कुछ तो है। या फैंटास्टिक फैंटास्टिक तो अभी एग्जाम्पल कोई एक नया स्टूडेंट है जो अपना जर्नी चालू करना चाहते हैं, you've done a lot of work, आपने काफी सारे अचीवमेंट्स लिए हुए, बट एक कोई ग्राउंड जीरो से चालू करते हैं, तो सबसे बड़ा एडवाइस उनके लिए क्या है? डरो मत, तुम्हारा आइडिया कोई नहीं चुराने वाला। एंड बेशरम हो जाओ, बिकॉज स्टार्टअप इंडस्ट्री में अगर आप बेशरम नहीं हो तो आप नहीं कर सकते कुछ। आपको हम्म, जाके इन्वेस्टर के सामने से बात करनी पड़ेगी। आप इंट्रोवर्ट रह के स्टार्टअप चालू नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। और कभी भी डरो मत, बिकॉज कुछ देखो, अगर मान लो सामने वाले इन्वेस्टर को बुरा ही लग गया, क्या ही कर लेगा वो? कल तुम्हें ना ही तुम्हारे को पता है, तुम्हारा नाम भी अच्छे से पता नहीं, उसको याद नहीं रहने वाला, अगली सुबह वो उठेगा तुम्हारे हाँ बारे में कुछ नहीं जानेगा वो। क्या फर्क पड़ता है? गो फॉर इट। अच्छा हुआ तो यू विल गेट अ चांस, यू विल गेट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। नहीं हुआ तो कुछ जा थोड़ी ना रहा तुम्हारा। सर ऑल दैट थिंग, डरना नहीं है। एंड हाँ, स्टार्टिंग में सबको बैकलैश मिलता है, सबके थोड़े पेरेंट्स वरीड रहते हैं, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मत करो, ये मत करो। तो हम्म ये एक्चुअली ना बहुत लोगों को लगता है कि, बहुत लोग मेरे से पूछते भी हैं, हाउ डू आई कन्विंस माई पेरेंट्स, हाउ डू आई कन्विंस देम। ये पूछने वाली चीज नहीं है। अगर आप खुद से कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ, बिकॉज ये चीज हम नहीं आपको सिखा सकते आप कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया में दम है, तो आप खुद ही कन्विंस करने लायक आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस करो कि हाँ मेरे आइडिया में दम है। अगर आप वो भी नहीं कर पाए, अपने पेरेंट्स फर्स्ट इन्वेस्टर, अपने पेरेंट्स को नहीं कर पा रहे हो, तो आप फ्यूचर में किसी VC को कैसे कर पाओगे, या किसी भी फंडिंग एजेंसी को कैसे कर पाओगे? सो डरना नहीं है। डरते हैं बहुत लोग, मैं भी स्टार्टिंग में बहुत डरता था बिजनेस करने से, बिकॉज मेरे तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई था भी नहीं इसमें, और सबको हाँ बहुत डर लगता था। मेरे यहाँ स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं। सो यू कैन जस्ट
इमेजिन कि किस बैकग्राउंड से आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो या बस यही एडवाइस रहेगा। अदरवाइज आप जर्नी में जैसे थे आगे चलते जाओगे ना, आप खुद ब खुद सीख जाओगे क्या करना है, कैसे करना है। जर्नी ही आपको सबसे बड़ा लेसन्स जो है इस सेक्टर में सिखाएगी। सो या एब्सोल्युटली सही है। अभी मैं ये सब सुन के ऐसे लग रहा है मैं बुढ़ा हो गया बट ये स्टिल यंग। बट हाँ, हम लोग दोनों में दो दो साल का गैप है। अभी आप 18 टर्न हुए, मैं 20 अभी टर्न होने वाला हूँ अगस्त में। हाँ, तो लास्ट मंथ ऑफ मी बीइंग अ टीन येट। एक्चुअली ये ऑन रिकॉर्डिंग मत डालना, बट अनऑफिशियली आई एम, यू कैन से 19 ओ, अनऑफिशियली। दिस ईयर itself I got 19 अनऑफिशियली है ये। एज इन uh, अनऑफिशियल मतलब? मतलब जब मैं बॉर्न हुआ था तो मेरे एक साल बाद, अच्छा, बिहार में आधार एक्चुअली कार्ड। बहुत ट्रेंड है ये। हाँ हाँ। मैं बिहार से हूँ ना, तो यहाँ बहुत ट्रेंड है कि एक साल बाद बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है। ओ, और वो बहुत बहुत इससे परेशान किया है मेरे को ये। क्यों? नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे ना ज्ञान बहुत देते हैं लोग। और किसी ने ज्ञान दे दिया था कि एक साल अगर कम करके बनवाओगे तो बच्चे को एडमिशन और ये पता नहीं इन सब चीजों में बहुत हेल्प होगी, जो कभी नहीं हुई। उल्टा नुकसान हुआ है। तो ये कह सकते हो ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स भी नहीं, एक्चुअली मेरे जो दादा थे उन्होंने ये सलाह दी थी और ये करवाने का सोचा था। तो उसके चक्कर में मैं बहुत घिसा हूँ। अगर ये नहीं होता तो आज के टाइम में वो जो कंपनी और इनकॉर्पोरेशन में जो प्रॉब्लम्स फेस हुई और ये सारी चीजें वो आज तक में नहीं होती। तो हाँ नहीं, बट फिर भी ये वो ऑन एक रिकॉर्ड मत एडवांटेज डालना है। प्लीज। हाँ हाँ मेरा नहीं। आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। नहीं 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 डालेंगे। बट हाँ। इसमें एक एडवांटेज है, पता है, क्योंकि आप जितना टाइम यंगर हो उतना अच्छा हम्म। है, बिकॉज टिल द टाइम यू आर ट्रीटेड एज मोर ऑफ अ स्टूडेंट देन अ competitor। तो हम्म। सामने वाले के पर्सपेक्टिव से आपके सेल्स क्यों बढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि आर्मी हम्म। वाला सोचता है ये स्टूडेंट है, इसको सपोर्ट करना चाहिए सामने वाले के। तो व्हेन द पॉइंट यू बिकम 22 24, वहां से तुम वो हो जाते हो कि यार अभी ये बड़ा हो गया, अभी इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो द यंगर यू आर द बेटर। तो जो भी ये पॉजिटिवली, हाँ, ये बात तो बिल्कुल अग्रीड। मैं तो चाहूंगा कि अगर मैं हमेशा 15 साल का हूँ तो वो मैं हमेशा वो ब्रांड यूज कर सकूं, हाँ, 15 साल का फाउंडर। बहुत बहुत इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं अभी तो गवर्नमेंट के बाद यंगर वंस के लिए। तो हाँ वो तो बहुत रिग्रेट होता है। नहीं, बट अच्छा है। एंड अभी पॉडकास्ट का कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच तनिष्क। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर्सनली मुझे फील हुआ कि आई वॉज रीलिविंग माई जर्नी ऑल्सो, एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट हमने जो भी काम किया थोड़ा सा इम्पैक्ट भी अगर हमने किया है, इट इज अ वेरी वेरी बिग win for us, because it really helps us do more and more episodes, more and more seasons, and grow more and more. So thank you so much for innovating Kaisel Tech. Thank you so much for giving up the dar of coming on TV, giving up the dar of sharing your idea. Thank you so much for, coming from Bathinda to Delhi, giving your time, effort, energy, money, बहुत सारा चीजें के लिए थैंक यू। एंड आई होप टू सी यू soon as a judge of Skill Titan Season 2.